Chapter 3 Ruling the Countryside Notes and Summary from Class 8 Subject Social Science History Book Our Past 3 Introduction. After the Battle of Plassey 1757 and Buxar 1764, the British East India Company became politically dominant. In 1765, the Mughal Emperor granted the company Diwani rights, right to collect revenue for Bengal, Bihar and Orissa. The company now had to administer land, organize revenue and ensure agricultural production to finance trade and administration. यह अध्याय बताता है कि कैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के गांवों की जमीन, खेती और किसानों को अपने फायदे के लिए बदल डाला. द कंपनी बिकम्स द दीवान. On 12th August 1765, East India Company became the Diwan of Bengal. Robert Clive received this title from the Mughal Emperor. The company, as Diwan, became the chief financial administrator. It had to collect revenue and ensure enough income for its expenses. कंपनी बनी दीवान. 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी हक दे दिया. अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, बल्कि उसे राजस्व वसूली यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया. नेक्स्ट, रिवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी स्टिल थॉट ऑफ इटसेल्फ एज अ ट्रेडिंग बॉडी, नॉट अ रूलर. इट ट्राइड टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू एंड बाय इंडियन गुड्स चीपली. Within 5 years, company's purchases doubled. Earlier, gold and silver were imported from Britain for trade, but now Bengal's revenue financed exports. Result: Bengal's economy collapsed, peasants burdened, artisans forced to sell cheap, desertion of villages, famine of 1770 killed 10 million people. कंपनी के लिए राजस्व. कंपनी को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाना था. पहले ब्रिटेन से सोना चांदी लाकर सामान खरीदा जाता था, लेकिन अब बंगाल की आमदनी से कपड़ा और अन्य वस्तुएं खरीदी जाने लगी. नतीजा, कारीगरों को सामान बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ा, किसान टैक्स नहीं चुका पाए और 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मर गए. द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. Crisis forced the company to look for ways to improve agriculture. In 1793, it introduced the permanent settlement. Zamindars recognized as landowners, they had to pay a fixed revenue to the company. Belief: Zamindars would invest in land improvement since profits from increased production would be theirs. खेती सुधारने की जरूरत. इतने बड़े संकट के बाद कंपनी को लगा कि अगर खेती सुधारी नहीं गई तो राजस्व भी नहीं मिलेगा. इसीलिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया. इसके अनुसार जमींदारों को स्थायी मालिक मान लिया गया. उन्हें तयशुदा राजस्व कंपनी को देना था. सोचा गया कि वे खेती सुधार में निवेश करेंगे. द प्रॉब्लम: रियलिटी, रेवेन्यू डिमांड वाज टू हाई. Zamindars often defaulted, estates auctioned. Even when cultivation expanded, company gained nothing since revenue was fixed. Many zamindars didn't invest in land, they just collected rent from tenants. Cultivators were heavily taxed, insecure, often evicted, and in debt to money lenders. समस्या: लेकिन असल में हुआ उल्टा. राजस्व बहुत ज्यादा था, जमींदारों की जमीनें नीलाम होने लगी. जमींदार खेती सुधार में रुचि नहीं लेते थे. किसान किराया भरने के लिए कर्ज लेते और जमीन से बेदखल हो जाते. कोलब्रुक ऑन बंगाल रियॉट्स. H.T. Colebrook 1806 described under tenants suffering from excessive rents, debt traps, low subsistence, no hope of betterment. कोलब्रुक का बयान 1806 में H.T. कोलब्रुक ने लिखा कि अध किसान अंडर टेनेंट्स बहुत दुखी थे. वे ऊंचा किराया भरते, कर्ज में फंसते और गरीबी से कभी निकल नहीं पाते. A new system is devised, महलवारी सिस्टम.
Introduced by Holt Mackenzie 1822 in northwest provinces UP region. Revenue demand was calculated for each village महल. Responsibility to pay given to village headmen, not zamindars. Revenue demand revised periodically. नई व्यवस्थाएं. महलवारी व्यवस्था 1822 हॉल्ट मैकेंजी. गांव को एक इकाई माना गया. राजस्व की जिम्मेदारी गांव के मुखिया पर डाली गई. द मुनरो सिस्टम रियोतवारी सेटलमेंट. Introduced in South India by Captain Reed and Thomas Munro. Settlement made directly with cultivators, ryots, not zamindars. Each field measured, revenue fixed. British officials acted like paternal fathers to ryots. All was not well. Revenue demands were too high. Peasants failed to pay, fled villages, countryside deserted. Hoped for prosperity of peasants did not happen. रैयतवारी व्यवस्था कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो दक्षिण भारत. समझौता सीधे किसानों से हुआ. हर खेत नापा गया और राजस्व तय हुआ. लेकिन इन व्यवस्थाओं में भी टैक्स बहुत ज्यादा रखा गया. किसान भागने लगे, गांव सुनसान हो गए. क्रॉप्स फॉर यूरोप. ब्रिटिश वांटेड इंडिया टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल क्रॉप्स. इंडिगो, ओपियम 18th century. लेटर जूट, टी, शुगरकेन, वीट, कॉटन, राइस. यूरोप के लिए फसलें. अब अंग्रेजों को सिर्फ राजस्व ही नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसलें भी उगवानी थी, जैसे अफीम, नील, इंडिगो, जूट, चाय, गन्ना, गेहूं, कपास और चावल. डज कलर हैव अ हिस्ट्री. इंडिगो डाई, ब्लू कलर, केम फ्रॉम द इंडिगो प्लांट वाइडली यूज्ड इन यूरोप फॉर टेक्सटाइल्स. इंडिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड. नील का इतिहास. नील के पौधे से नीला रंग बनता था. यूरोप के बुनकर इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि यह गहरा और चमकीला नीला होता था. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. यूरोपियंस अर्लियर यूज्ड वोड, अ डल ब्लू डाई. इंडिगो गेव अ रिचर कलर. विद इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड फॉर इंडिगो सोared. Decline of supplies from West Indies and America due to revolts, slavery abolition. By early 19th century, India became main supplier. पहले यूरोप में वोड नामक पौधे से हल्का रंग बनता था, लेकिन बाद में भारतीय नील की मांग बढ़ी. ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. By 1810, 95% of indigo in Britain came from India. Company officials and private planters invested in indigo plantations. भारत की ओर झुकाव. 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में कपड़ा उद्योग बढ़ा और नीले रंग की मांग तेज हो गई. 1810 तक ब्रिटेन में आयात होने वाला 95% नील भारत से आता था. हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड. टू सिस्टम्स. फर्स्ट, निज कल्टीवेशन. Planters cultivated on their own lands with hired labor. Second, ryoty system. Planters forced ryots to sign contracts to grow indigo on part of their land. नील की खेती के तरीके. दो तरीके थे. पहला, निज व्यवस्था. बागान मालिक अपनी जमीन पर मजदूर रखकर नील उगाते. दूसरा, रैयती व्यवस्था. किसान को अग्रिम पैसा देकर जबरदस्ती उसकी जमीन पर नील उगवाया जाता. The problem with niche cultivation. Fertile lands already occupied by peasants for rice. Labor difficult to obtain. Peasants busy with rice. Huge investment in plugs and bullocks required. Less than 25% of indigo grown this way. निज व्यवस्था की दिक्कत. उपजाऊ जमीन पहले से किसानों के पास थी. नील की फसल के लिए बहुत मजदूर और बैल चाहिए थे, इसलिए निज व्यवस्था बहुत कम चल पाई. 25% कम. इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स. प्लांटर्स गेव कैश एडवांसेस सट्टा टू रियोट्स. रियोट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ लैंड. प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड्स बट पीजेंट्स बोर ऑल अदर कॉस्ट. इंडिगो एग्जॉस्टेड सॉइल. लैंड अनफिट फॉर राइस. प्राइसेस पेड वर वेरी लो. पीजेंट्स ट्रैप्ड इन डेब्ट साइकिल. रैयती व्यवस्था. किसानों को सत्ता, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, साइन करने पर मजबूर किया जाता.
उन्हें जमीन का 25% हिस्सा नील के लिए देना पड़ता। बीज और औजार तो गोरों से मिलते, लेकिन मेहनत और जोखिम किसान का होता। नील मिट्टी को खराब कर देता और धान की फसल नहीं हो पाती। किसान हमेशा कर्ज में फंसे रहते। हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड? प्रोसेस डन इन फैक्ट्रीज विद वेट्स। फर्स्ट, indigo leaves soaked in fermenting vat. Second, liquid drained into bitter vat, stirred till color changed. Third, lime added, indigo separated out. Fourth, indigo pulp dried and cut into cakes. नील कैसे बनाया जाता था? कटे हुए पौधों को बड़े बड़े टैंकों, जिसे हम कहते हैं वेट्स, में डाला जाता। पानी में गलाने, हिलाने और चूना मिलाने के बाद उसमें से नीला गाढ़ा पेस्ट निकलता। फिर उसे सुखाकर ठोस टिकिया, केक्स बनाई जाती। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर 1859, riots of Bengal refused to cultivate indigo. Rebels attacked factories, boycotted planters' agents, refused advances. Women also joined resistance. Supported by zamindars and village headmen, riots hoped British government would support them. Government set up Indigo Commission 1860. Declared indigo cultivation was unprofitable for riots. Riots could refuse future contracts. Indigo cultivation collapsed in Bengal, shifted to Bihar. With synthetic dyes, late 19th century, indigo declined further. A song from an indigo producing village. Folk songs expressed peasants' anger and resistance. Example, a song from Bengal celebrating peasants' fight against planters. Lathials, strong men. नील विद्रोह 1859। 1859 में बंगाल के किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैक्ट्रियों पर हमला किया, अग्रिम पैसा लेने से मना कर दिया, यानी कि एडवांस पैसा। औरतें भी लड़ाई में शामिल हुईं। जमींदार और गांव के मुखिया भी किसानों के साथ खड़े हुए। सरकार ने इंडिगो कमीशन 1860 बनाया। इसमें कहा गया कि नील की खेती किसानों के लिए नुकसानदेह है। अब किसान चाहे तो नील की खेती से इनकार कर सकते थे। बाद की घटनाएं। बंगाल में नील की खेती बंद हो गई, लेकिन यह बिहार में फैली। 19वीं सदी के अंत में जब कृत्रिम रंग, सिंथेटिक डाइज बन गए तो नील की मांग कम हो गई। 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील किसानों की समस्या उठाई। यह चंपारण आंदोलन कहलाया। समरी। In 1765, the East India Company became Diwan of Bengal, controlling land revenue. The company exploited revenue collection, causing famine and rural distress. Permanent settlement 1793 and later Mahalwari and Rayotwari systems were introduced, but peasants still suffered due to high demands. British forced peasants to grow commercial crops, especially indigo, which was in high demand in Europe. Indigo cultivation was exploitative. Peasants trapped in contracts and debt. The oppressive system led to the Blue Rebellion 1859, forcing the government to admit its failure. Indigo production declined after synthetic dyes were discovered. The chapter shows how colonial rule reshaped Indian agriculture to serve British economic interest, leaving peasants impoverished. तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अंग्रेजों ने भारत की खेती को सिर्फ अपने मुनाफे के लिए बदला। किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया, उन्हें जबरदस्ती नकदी फसलें उगानी पड़ी। उनकी हालत खराब होती चली गई, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और विद्रोह करके अपने हक की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड के नोट्स और समरी यहाँ समाप्त होता है। तो यह था रूलिंग द कंट्री साइड, एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि किस तरह भारत की मिट्टी और मेहनत को औपनिवेशिक सत्ता ने अपने हित में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।